کہ ہاں فلاں شخص نے غلطی کی ہے, ایکول اپرچونٹی کا جو اسپرٹ ہے کہ اس کی جو روح ہے اس کے خلاف کام کیا ہے تو اس کو سزا ملنی چاہیے. وہ سزا دینے کا کیا حق بھی اسی کمیشن کے پاس ہو, اگر ظاہر اس کے خلاف اپیل ہو سکتی ہے, وہ بات اور ہے, تو وہ اس سے 100% پھر گارنٹی ہو جائے گی. ایک چیز جو میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ جو انیکویلٹی ہے, وہ نابرابری جو کہیے اس کو آپ, غیر یکسانیت, تو وہ کیوں ہوتی ہے اور وہ کن بنیاد کے اوپر ہوتی ہے؟ ابھی آپ نے کہا وہ مذہب کی بنیاد پہ بھی ہو سکتی ہے, کاسٹ کی بنیاد پہ بھی ہو سکتی ہے, ریجن کی بنیاد پر بھی ہو سکتی ہے نا. لیکن یہ کہ جو انیکویلٹی ہوتی ہے وہ اس کو انیکویلٹی کو سماج میں لا کر کے اور اس کو کسی کیس میں امپلیمنٹ کرنے کا جو ذریعہ ہوتا ہے وہ ہوتی ہے سفارش. اگر آپ غور کریں میری بات کے اوپر, ہمارے ملک کے اندر اس قدر زبردست سفارش کا رواج ہے, ہم سارے لوگ پورے 120 کروڑ یہ طے کیے بیٹھے ہیں کہ سفارش جو ہے وہ ہماری زندگی کا ایک ضروری حصہ ہے, اور نہ کروانے میں سفارش کسی کو حق ہے, ضرور کریں گے, اور سوچتے ہیں کہ یہ تو ہے ہی اس کے. تو اگر آرٹیکل 17 میں لکھا ہوا ہے انٹچیبلٹی از ابالشڈ, چھوا چھوت جو ہے ابالش کر دی گئی کانسٹیٹیوشن میں, جو کرے گا اس کے خلاف یہ ہے. مجھے تو لگتا یہ ہے کہ اگر سب لوگ مل کر کے یہ طے کریں, اور خاص طور سے لیجسلیٹر صاحبان, کہ صاحب سفارش کو بھی ابالش کر دو. اگر آپ سفارش کو ابالش کر دیں اور کل پورے ملک میں ایک مہم چلنے لگے کہ سفارش غلط چیز ہے, کیونکہ سفارش اگر ختم ہو جائے گی تو میرٹ اس کا ٹیک اوور کر لے گی. اس طرح سے پولیٹیکل لیڈر جو ہے وہ ڈیزائر لکھنا بند, میں آپ کو کروں, اس طرح کے تجربات ہو چکے ہیں. علی گڑھ یونیورسٹی میں جب سید حامد صاحب وائس چانسلر بنے تھے تو انہوں نے اس طرح کے بہت سے کام کیے. انہوں نے ایک چیز یہ کہہ دی کہ صاحب عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ سفارش کی بنیاد کے اوپر اس میں کھیل کی ٹیمیں بنا دی گئیں. تو ہاکی کے لیے جب سلیکشن ہونا تھا یونیورسٹی ٹیم کا تو انہوں نے دھیان چند کو بلایا اور کہا کہ آپ فیلڈ کے اوپر کھلوا کے دیکھیے, آپ جس کو کہیں گے سب سے اچھا کھیل رہا ہے اس کو ہم کر دیں گے. تو میرٹ ٹوک اوور, میرٹ آ گئی ہے نا. اسی طرح سے طرح طرح شعبوں میں انہوں نے یہ کام کیا تھا. اس کے اوپر شروع میں تھوڑا اعتراضات ہوئے وغیرہ, لیکن وہ سسٹم بہت اچھا, وہ پورا کانسیپٹ, پورا ماڈل بہت اچھا ہے. اگر ہم سفارش کے اوپر کسی طرح سے کنٹرول کر سکیں, جو سفارش کروانے والا ہے وہ بھی کہے نہیں اگر میں سفارش اپنے بچے کی کرواؤں گا تو کسی دوسرے زیادہ حقدار کا حق مارا جائے گا. اسی وجہ سے انیکویلٹی آف اپرچونٹی ہوتی ہے. اس کے اوپر آج کل دوسرے کے بارے میں سوچتا کون ہے؟ یا تو نفسی کا عالم ہے, سب کچھ کو اپنے بارے میں سوچ رہا ہے. ابھی ہم ہمارے مسائل میں بیٹھے بات کر رہے ہیں, تو اگر ہم ہی کم سے کم سوچنے لگے اس کے اوپر تو انشاءاللہ شروعات تو کہیں نہ کہیں سے کرنی پڑے گی. میم آپ کو لگتا ہے, جیسے میں نے کہا کہ یہ جو سفارش کا جو مسئلہ ہے آپ نے بڑا اہم ایشو اٹھایا ہے, سفارشیں ہونا بند ہو جائیں گی, ہمارے لیڈرز جو ہے وہ ڈیزائر لکھنا بند کر دیں گے, پھر وہ سوچیں گے کہ مجھے نقصان ہوگا الیکشن میں, کیونکہ وہ ڈیزائر لکھتے ہیں تبھی تو پھر کہیں گے کہ میں نے آپ کا یہ کام کروایا تھا, آپ کے لیے ڈیزائر لکھی تھی. یہ کہیں نہ کہیں اس کا جو سب سے بڑا نقصان اگر ہوگا, ٹھیک عام لوگوں کو فائدہ ہوگا, لیکن پولیٹیکل لیڈرز جو ہیں وہ شاید کبھی نہیں چاہیں گے کہ یہ جو سفارشیں ہوتی ہیں ان کے اوپر پابندی لگے, یا یہ جو ہے اس کو بند کر دینا چاہیے. جیسے ابھی بات جو ابھی ظفر صاحب نے اور انیس صاحب نے جو بات کہی ہے, ہمیں میریٹوکریسی کی طرف جانا چاہیے نا. اگر لیڈرز یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا ڈیزائر کی وجہ سے وہ ری الیکٹ ہوتے ہیں, یا ان کا ووٹ بینک ڈیزائر کے دار و مدار پہ ہے بجائے اس کے کہ میریٹوکریسی پہ ہے, تو آئی تھنک یہ اس کا پوری بنیاد ہی غلط ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں بہت ضروری ہے کہ چیزیں ایک روٹین سے ہو جائیں. اگر روٹین سے چیزیں ہو جائیں, جیسے کہ میرا پاسپورٹ بننا ہے, یا جیسے مجھے کسی نوکری کے لیے میں کوالیفائڈ ہوں, اس کے لیے عرضی داخل کرنی ہے, جیسے میرا ریلوے ریزرویشن ہو رہا ہے, جیسے میرا کوئی بھی کام ہونا ہے, اسی لیے ہم ای گورننس کی بات کرتے ہیں کہ اس میں کچھ حد تک ہول تھنگ از اکارڈنگ ٹو آئی ٹی. مگر اگر ہم اس کو ایک تو میریٹوکریسی اور دوسرے روٹین میں کام ہونا, جس کی وجہ سے اینی اسٹوڈنٹ ہو کوالیفائز ایز این آؤٹ اسٹینڈنگ اسٹوڈنٹ, اس کو سب سے بہتر یونیورسٹی میں, اس کو سب سے بہتر اسکول میں
इज अ पॉसिबिलिटी, बजाय इसके कि अरे साहब आप 2 लफ्ज कह दीजिए, बस आपका एक लफ्ज काफी होगा, आप कह तो दीजिए मैडम, आपको तो कोई मना ही नहीं कर सकता। मुझे भी चढ़ा रहे हैं, मुझे भी पागल बना रहे हैं, और जिससे मैं कह रही हूँ उसको भी, वो भी पागल, उसको भी पागल बनाए। तो ये इट्स अ वेरी सेल्फ डिस्ट्रक्टिव चीज ये चल रही है हमारी सोसाइटी में। और मानते हैं आप अनीस साहब कि एक तो ये सिफारिशों वाला जो मसला है, मैंने कहा कि भाई कहीं ना कहीं पॉलिटिकल लीडर्स शायद सबसे ज्यादा तकलीफ उन्हीं को होगी, और या फिर जो उम्मीद लगाए बैठे रहते हैं सिफारिशों से, उनको जो इससे कहीं ना कहीं नुकसान होगा, और ये सब चीजों की वजह से जो है जो काबिलियत है उसको नुकसान सबसे ज्यादा होता है। देखिए, मैं काबिलियत जो है कहीं ना कहीं असरअंदाज होती है। इसको घूम के दोबारा उसी पर पहुंचता हूँ, इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन की तरफ, कि जिस वक्त अगर ये सही मायने में ये फाल हो जाए और ईमानदारी के साथ ये और लॉ के हिसाब से काम करने लगे बनने के बाद, तो फिर सिफारिश लिखने वाला भी डरेगा कि भाई ये अगर, क्योंकि जब इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन काम करेगा तो वो सजा भी देगा, पेनलाइज भी करेगा कि कैसे हुआ, तो वो अफसर भी सिफारिश को मानते हुए झिझकेगा। एक तो ये बात है। जहां तक डिजायर सो एंड डिजायर सो की बात है, ऐसा है कि एक डिस्क्रिशनरी कोटा तो एक सिस्टम में है, सब जगह होता है वो, उस डिस्क्रिशनरी कोटे के अंदर तो कुछ हो सकता है कि किसी ने सिफारिश कर दी हो, लेकिन अदरवाइज पूरी सोसाइटी के अंदर और मेरिट काम होना चाहिए, और उसमें चाहे कितना ही, और जैसा मैम ने कहा कि जो रूटीन में काम होना है वो काम कीजिए। मैं तो बिल्कुल आई वुड रेस्पेक्टफुली सबमिट कि ये डिस्क्रिशनरी कोटा भी खत्म होना चाहिए। डिस्क्रिशनरी कोटा का आएगा, मेरिट 100% होने चाहिए। अगर 100 लोग अपॉइंट होने हैं तो 100 के 100 मेरिट पे होने चाहिए, कोई डिस्क्रिशन नहीं। ठीक है, अभी तक कल्चर रहा है, लेकिन ये कि अब तब्दीलियां आ रही हैं और भी आनी चाहिए। अच्छा, जो लोग जो हैं बिल्कुल जो इससे असरअंदाज होते हैं इन सारी चीजों से और सिफारिशों का जो इस्तेमाल करते हैं, मेरा ख्याल कि हम सब लोग कहीं ना कहीं गैस कनेक्शन और मोबाइल और ये सब चीजों में जो है कनेक्शंस लेने में कहीं सिफारिशें चलती थी, आम आदमी सबसे ज्यादा इससे जो है वो परेशान रहता है या मुतासिर रहता है। आपको क्या लगता है अगर ये कमीशन बनता है कहीं ना कहीं मसलों का हल होगा? आप सोचती हैं ऐसा? ऐसा होता है तो आम लोगों को बहुत फायदा होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो सोर्सेज के जरिए, सिफारिश के जरिए अपना काम करवाते हैं। उसकी वजह से अच्छे लोग पीछे ही रह जाते हैं जिनमें एबिलिटी होती है, पर उसके बावजूद भी आगे नहीं आ पाते। आपको क्या लगता है ये जो सिफारिशों की बात हो रही है, भाई सिफारिश का जो सिस्टम है या कल्चर है एक तरीके से हो गया है, हर किसी को जो है वो सिफारिश कर देता है। रेलवे टिकट जो है अगर कंफर्म नहीं हो रहा तो उसके लिए भी किसी को फोन कर देंगे, ये नहीं पता कि उससे किसी का नुकसान होगा, कोई दूसरा आदमी जो है वो जाने से रह जाएगा, है ना। हालांकि अच्छी बात यह है कि ये जो फ्लाइट सिस्टम है जो हवाई जहाज का है वहां कोई नहीं है, वहां कोई नहीं है, वहां जैसे मैंने कहा रूटीन में ही काम हो जाता है। तो जब आप सिफारिश करते हो किसी दूसरे का हक जो है वो मारा जाता है, इसमें कहीं ना कहीं आम आदमी को ही शुरुआत करनी होगी। बिल्कुल, आम आदमी को शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि जो सोर्स करवाते हैं वो भी आम आदमी में से भी होते हैं, लेकिन इससे किसी जो ज्यादा जिनको जरूरत है उनकी जरूरत मार खा जाती है। सबने बताया कि डिजायर जो सिस्टम है इसमें जो सबसे ज्यादा नुकसान जो होगा पॉलिटिशियन को होगा। मेरे ख्याल से ऐसे भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो सही मायने से है तो फिर वो लीगली काम करना चाहेंगे, तो आम पब्लिक जो है, जो बिल्कुल जो एकदम नॉर्मल लोग हैं, ये लोग यही देखेंगे नहीं ये सही से काम कर रहे हैं, उसको भी सपोर्ट भी मिलेगा इससे, इसमें कोई बुराई है नहीं। तो इसमें सबसे ज्यादा परेशानी उन लोगों की होगी जो ट्रांसफर चाहते हैं, जो टीचर्स हैं, जो डॉक्टर हैं, अपने घरों के पास जिनको पोस्टिंग चाहिए होती है, तो कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा मुतासिर वो होंगे। जी, मेरा कहना यह है, ये जो सिफारिश वाला मामला है ये ठीक है, कहीं कहीं ये छोटी छोटी बातों में कामयाबी मिलती है। जैसे सरकारी हॉस्पिटलों में लोग लाइनों में लगे रहते हैं, कोई फोन कर देता, छोटे से छोटा कार्य करता, किसी अदर पार्टी किसी पार्टी का, या डॉक्टर से फोन कर दिया डायरेक्टली, तो उससे कोई फायदे होते हैं। लेकिन ये आम आदमी को बिल्कुल सोचना चाहिए कि सारा कुछ दारोमदार सिफारिश पर नहीं रखना चाहिए। ये तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी कुछ ना कुछ कमी है। उसके अलावा मैं इसमें ये दूसरी चीज याद करना चाहता हूँ कि जो अफसरशाही है ना, उसको भी अगर गौर से स्टडी किया जाए तो काफी मुल्क में दूसरा एक कल्चर भी है, और वो है तासुब का, किसी न किसी बुनियाद के ऊपर तासुब करना। सच्चर कमेटी ने इस ताल्लुक से भी एक बड़ी मजबूत सिफारिश की है। उसमें उसने ये कहा है कि साहब जो ऑफिसर्स हैं, जो अफसरशाही है, उनको सेंसिटाइज करने के लिए प्रोग्राम्स गवर्नमेंट की तरफ से होने चाहिए। वो भी पिछले 7 साल में ऐसे खास हुए नहीं है। अगर उसको भी शुरुआत, इट्स नेवर टू लेट, अगर अभी 3-4-5 महीने हैं यूपीए गवर्नमेंट के पास, अभी भी वो काम शुरू कर दे तो कुछ न कुछ तो असर। और बिल्कुल 4 जून 2009 को जो है उस वक्त की जो मौजूदा सदर जमहूरिया हिंद जो थी, उन्होंने रिकमेंडेशन को मान लिया था, मुहर लगा दी थी, जो ये इक्वल अपॉर्चुनिटीज कमीशन है। तो इस तरह की चीजें जब मतलब राष्ट्रपति कह रहे हैं, सदर जमहूरिया हिंद कह रहे हैं, उसके बाद भी अगर वो कमीशन उसकी तश्कील नहीं हो रही है
तो फिर कहीं ना कहीं वो सारी चीजें अलग है, ठीक है, नहीं, वो सिफारिश ये है ना कि हम फिर उसका अकाउंटेबिलिटी पब्लिक मांगे। 2009 जून 1 एंड 2013 तो क्यों नहीं ये चीजें हुई हैं? और उसके लिए देयर आर मेनी एक्सक्यूजेज, मगर ये हम सब जानते हैं कि जब पॉलिटिकल विल होती है तो देयर इज द लोकायुक्त, दोनों ही हाउसेस से पास हो जाता है। जब जो सिचुएशन ऐसी होती है, अब जैसे औरतों का मसला ले लीजिए, जब 16 दिसंबर 2012 के बाद पूरे मुल्क में सिक्योरिटी और सेफ्टी ऑफ वुमेन का एक बहुत बड़ी आग लग गई, तो यानी हम कानून पास हो गया, बन गया कानून। और मगर अब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि वाई शुड वी वेट कि इतना बड़ा हादसा हो और उसके बाद हम उसमें ये शायद अमल दरामद हिंदुस्तानियों करें। की एक कहीं ना कहीं जहनियत बन गई है, सोच बन गई है कि हम सब लोग हादसे का इंतजार करते हैं। देखिए, डिजास्टर मैनेजमेंट जो है, अब डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस होना चाहिए। बिल्कुल सही बात। ये नहीं कि जब आग अगर लग हादसा जाए हो जाए, तो- हादसे का इंतजार मगर करते अगर हैं। हमारे बिल्डिंग्स जो हैं अर्थक्वेक प्रोटेक्टेड हों तो फिर डिजास्टर प्रिपेयर्ड है ना हम। बिल्कुल सही बात है। तो ये बात, और जैसे हमने कहा भाई सब लोग कह रहे हैं, और सबसे बड़ा सवाल कांग्रेस के ऊपर ही उठता है, क्योंकि पिछले जो है वो 10 साल से वो इख्तिदार में है, उसकी पार्टी की हुकूमत में है, बड़ी पार्टी वही है, क्यों नहीं हो पाता ये काम? ये एक प्रोसेस ये है कि एक चीज आपने सोची, उसको उसके लिए फिर आपने एक लीगल उसके एस्पेक्ट देखे, उसके बाद आपने उसको पास कर दिया, ये चीज होती है कि लेकिन उसके बाद जो उसको इम्प्लीमेंटेशन का लेवल है उसके अंदर हुकूमत एक बहुत ज्यादा खुद मुख्तार नहीं होती, क्योंकि फिर मामला जब ब्यूरोक्रेसी के हाथ में चला जाता है तो वो ग्रेजुअली उसके अंदर बहुत सारे रुकनांदाजियां होती हैं। और उसके अलावा भी तमाम कानूनों के अंदर सब जगह ये है कि जब वो स्टेट लेवल तक पहुंचते हैं तो बहुत ज्यादा डायल्यूट हो जाते हैं वो। और बिल्कुल अनीस साहब सही कह रहे हैं, क्योंकि जो आफ्टर ऑल सच्चर कमेटी जो जिसमें जफर साहब हैज प्लेड सच एन इम्पोर्टेंट रोल, वो भी तो इसी सरकार ने बनाई, बिल्कुल वो भी सही तो बात। इसी सरकार की ही और बहुत सारी तश्कील सिफारिशें थी। मान भी ली गई हैं, और उन पर बहुत- अमल भी हो रहा है, और काम हो बट रहा ही है। इज सो राइट कि एक हमारे पास एक स्टील स्ट्रक्चर है कि वो भी, उनकी भी अपनी मजबूरियां हैं, उनकी अकाउंटेबिलिटी। अब आपको मालूम है ब्यूरोक्रेसी भी बहुत अब एक तरह से केयरफुल हो गई है, जब से आरटीआई के बाद ब्यूरोक्रेसी और हिल नहीं लोकायुक्त सकती। आने के बाद तो और भी ज्यादा वो केयरफुल हो लोकायुक्त जाएगी। के बाद और भी। हमारे मसाइल में आज हम बात कर रहे हैं यकसा मौके कमीशन की तश्कील क्यों नहीं की गई, क्या नुकसान इससे हो रहे हैं। यहां पर एक ब्रेक लेंगे, बहुत जल्द हाजिर होंगे। वहां लोग कंप्लेन नहीं करते, यार ये लंबी लंबी लाइन, क्योंकि उन्होंने वहां हर लाइन को कर दिया ऑनलाइन। वहां कड़ी गर्मी में बंद पंखे के नीचे वक्त नहीं काटना पड़ता, क्योंकि उन्होंने वहां काट डाला पावर कट कोई। वहां औरतें मीलों चलकर नहीं जाती पानी के लिए, क्योंकि अब वहां पानी खुद चलकर आता है घर आंगन में। वहां अब लोग नहीं झुकाते गरीबी के बोझ से कमर, क्योंकि उन्होंने वहां झुका दिया है गरीबी को ही। अरे भाई इतना सब कुछ, और कहां? और कहां, गुजरात में। भाई ऐसा तो क्या है गुजरात में? मुझे नहीं रहना इस नरक में, मैं चली। कहाँ से बनवाऊं तेरे लिए ताजमहल, पता है? अरे एक ढंग का घर तो लेकर दे नहीं सकते और ताजमहल की बात करते हो। क्या हुआ? झगड़ा। चल बाहर आ और हटा अपना फालतू सामान यहाँ से। ये सड़क तूने करके रखी है क्या? ये मेरी जगह है। क्या हुआ? झगड़ा। चला ना अपना बाल्टी। अरे तुमने मेरी बाल्टी हटाई कैसे? अरे टॉयलेट हो या पानी हर जगह पहला नंबर तेरा रहेगा क्या? मैं भरूंगी पानी, हटा के दिखा। हाँ तो तुमने आपको क्या हुआ? झगड़ा। अबे अंधा है क्या? अबे अंधा होगा तू, देख नहीं रहा सड़क की हालत? क्या हुआ? झगड़ा 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 झगड़ा, ये झगड़ा बंद करो। अब राजीव आवास योजना के तहत सरकार घर के साथ साथ मूलभूत सुविधाएं जैसे साफ पानी, अपना शौचालय और पक्की सड़कें भी उपलब्ध करा रही है। अब रोज की समस्याएं गायब। फिर हम झगड़ा कब करेंगे? अब नो झगड़ा। ये मेरा छोटा सा डेयरी फार्म है। अभी कुछ दिनों पहले मेरे पास रोजगार बढ़ाने के लिए पैसे नहीं थे, धंधा बंद करने की नौबत थी। शुक्र है वजारत बराए अक़लियती उमूर की NMDFC कर्ज स्कीम का, जिसमें हमारे कारोबार से मुतालिक टर्म लोन की सहूलियत है।
छोटे कर्ज यानी माइक्रो फाइनेंस स्कीम में हम अकलियतों को रोजगार के लिए 50,000 रुपए तक की मदद का इंतजाम है। खवातीन तरक्की स्कीम में हम अकलियती औरतों को टेलरिंग, कटिंग और कशीदाकारी वगैरह की ट्रेनिंग मिली। एजुकेशन लोन स्कीम में कारोबारी और तकनीकी तालीमी कोर्सेज के लिए सभी अकलियतों को माली मदद दी जा रही है। आप भी इसका फायदा उठाएं। आप बनेंगे तो बनेगा हिंदुस्तान। अकेले तो ये देश बना नहीं, हमने एक दूसरे का साथ दिया, तभी तो बना ये भारत। सड़कें हमने बनाई, पर मुसाफिरों को खाना तो सबने मिलकर ही खिलाया। तमाम अस्पताल हमने बनाए, पर लोगों को जिंदगी तो सबने मिलकर ही दी। पोलियो अभियान हमने चलाया, पर सारी मुश्किलों के बावजूद अपने बच्चों को बूथ तक तो पहुंचाया सबने मिलकर ही। मेट्रो का ताना बाना हमने बुना, पर उसे घर जैसा सजाया संवारा तो सबने मिलकर ही। लाखों स्कूल हमने खोले, पर बच्चों को मौका तो सबने मिलकर ही दिया। खाद्यान्न सुरक्षा कानून हमने लागू किया, पर उस अनाज से फौलाद बनाने का सिलसिला तो सबने मिलकर ही जारी रखा। मोबाइल नेटवर्क से देश को बांधा हमने, पर देश की सीमा पर अपनों को हौसला तो सबने मिलकर ही दिया। कुछ यूं ही हमने मिलकर बढ़ाया देश को तरक्की की राह पर। तो क्यों न कहें, हम सब ने मिलकर बनाया ये भारत। भारत निर्माण का यही प्रमाण, जन जन को छुआ, जनजीवन बदला। इक्वल अपॉर्चुनिटीज कमीशन की तश्कील क्यों नहीं हो रही है? मरकजी हुकूमत जो है वो क्यों डरती है, क्यों झिझक है उसके अंदर, और क्या पॉलिटिकल विल जो है उसकी कमी है? इस पर हम बात कर रहे हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। क्या लगता है आपको, क्या कुछ होना चाहिए अब ये जो कमीशन है इसकी तश्कील हो जाए और जिसका हक है वो उसको मिल जाए? एकदम मिलना ही चाहिए। उस काम में इतनी गुंजाइश नहीं छोड़नी चाहिए कि जिसकी हिस्से की रोटी जिसको लिए तय हो वहां तक जाना चाहिए। और इसमें जो लोग जिम्मेदार हों उसको कानून के दायरे में ला करके उसकी ज्यादा से ज्यादा सजा देना चाहिए। या जिसको जिस काम के लिए रखा गया है अगर वो पूरा काम नहीं करता है तो उसको उसकी मजदूरी नहीं देना चाहिए और उससे जुर्माना लेना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो जितनी बातें हो जाए वो बातें होंगी और वो खत्म हो जाएंगी। दिमाग में सोचना और दिमागी में खत्म करना उससे बेहतर है। आप बताइए, आपको क्या लगता है जो इस तरह के कमीशन होते हैं? किसी को भी बेनिफिट होगा इससे, ठीक है, आम पब्लिक को भी बेनिफिट होगा। आम पब्लिक ऐसा करते हैं, अपना काम अपना सिफारिश के जरिए निकलवा लेते हैं, लेकिन कुछ लोग जो मजबूर हैं, बेवस है, वो अपना काम नहीं कर पाते, तो इससे बेनिफिट होगा। सिफारिश का सिस्टम तो खत्म ही कर देना चाहिए। उससे होता यह है कि जो टैलेंटेड बंदे होते हैं उनको अगर किसी अच्छे कॉलेज में लेना होता है तो टैलेंट उनका काम नहीं आता है, बल्कि वहां पे अगर कोई बड़े आदमी होते हैं, बड़े अच्छे घर से बिलोंग करते हैं, उनके पास अगर अप्रोच होता है तो वो सिफारिश के जरिए एडमिशन करवा लेते हैं, लेकिन जो टैलेंटेड बंदे रहते हैं वो घर बैठे हुए रह जाते हैं। पर इस तरह के एडमिशन में जो है सिफारिशें शायद उतनी ज्यादा अब नहीं चलती। जी सर, वहाँ पर जो है वहाँ बाकायदा रिटन एग्जाम होता है और जी। मैं ये कहना चाह रहा था, जैसे हमारे सभी तरीके के स्टेट में सेंटर में कमीशन है, तो सबको एक प्रचार प्रसार की तरह दुरानी साहब होना चाहिए। उसके बारे में लोगों को जनवाया जाए, इससे हमारे फायदे क्या हो सकते हैं। मैं समझता हूं कि कम तादाद में लोग ऐसे हैं जो हर कमीशन को जानते हैं और उनको पावर ऐसी मिलनी चाहिए। अभी बाजी ने बताया था कि मैं जानती हूं महिला आयोग की क्या पावर है, तो ऐसी नहीं होनी चाहिए। फुल पावर के तरीके से उनको एक महीने में बहुत अच्छा तरीके से विल पावर उनके अंदर भी हो, ऐसे लोगों को उसमें पदाधिकारी बनाए जाए। और दूसरा यह है कि उसको वाकई इतना मजबूत करा जाए ताकि एक सिपाही ये कह देता महिला आयोग कुछ नहीं है, नथिंग में, ये सीधी बात है। बिल्कुल सही बात है। एक सिपाही बहका देता, दूसरे लोग बड़े अच्छे पीड़ित, जो ज्यादा पीड़ित होता है उसको एक सिपाही बहकाने में कामयाब हो जाता। अरे कहाँ जा रहे हो, महिला कमीशन क्या कर लेगा? महिला कमीशन कुछ नहीं है, वो कुछ नथिंग है महिला कमीशन। तो ये स्थिति नहीं पैदा होनी चाहिए। अगर वाकई ये आयोग ईमानदारी के साथ में लागू हो और इनको मजबूताई मिले तो मैं समझता हूँ बहुत जल्दी इंशाल्लाह सभी मसलों के बिल्कुल। और इनका कहना यह है कि कमीशंस के बारे में या जो बोर्ड हैं या दूसरी जो कमेटीज हैं उनके बारे में लोगों को पता ही नहीं है, उनके राइट्स क्या हैं,
वहां जाकर उनको क्या फायदा हो सकता है, उनको अवेयर करना पड़ेगा लोगों को। जब तक लोगों को मालूम ही नहीं होगा किसी जगह जाकर हमको कोई फायदा मिल सकता है, बेनिफिट मिल सकता है, तब तक वहाँ क्यों जाएगा? बिल्कुल सही। कम्युनिकेशन गैप काफी है। मतलब जो सक्सेस स्टोरीज हैं, वो सक्सेस स्टोरीज हैं, उनको बताएं कि ये मामला ऐसे सुलझे हैं। अगर महिला का कोई मसला है तो उसके लिए ये सेटलमेंट हुआ है। और जो भी जैसे कि SC ST जैसे सफाई कर्मचारी, अगर जिसकी बात की है, ये जो सफाई कर्मचारी का एक्ट है, अगर मैनुअल स्कैवेंजिंग आज बहुत बड़ा क्राइम अगेंस्ट द स्टेट है, जहां सक्सेस हुई है, तो कई ऐसे सेक्टर्स हैं जो बहुत प्रचार प्रसार करते हैं और कई सेक्टर्स हैं जो बिल्कुल खामोश रहते हैं, तो लोगों को पता ही नहीं चलता। बिल्कुल। सलीम दुरानी साहब, ये जो इक्वल अपॉर्चुनिटीज कमीशन बनाने की जो सिफारिश थी वो सच्चर कमेटी के जरिए आई थी और उन्होंने बता दिया था कि उस रिपोर्ट में, सच्चर कमेटी रिपोर्ट में सारी चीजें थी कि भाई क्यों कुछ होना चाहिए, ये सब क्यों होना चाहिए। मुस्लिम तबके की या फिर कहा जाए मुसलमानों के जो हालात हैं, वो चाहे माशी हो, सियासी हालात हो, चाहे वो तालीमी हालात हो, वो बहुत ही ज्यादा, फिर उन्होंने साफ कहा कि भाई दलितों से भी पिछड़े हुए हैं ये लोग। और इसके लिए एक कमीशन की अगर तश्कील हो जाती है तो कहीं ना कहीं मसले का हल शायद हो जाएगा, ऐसी उम्मीद की जा रही है। तो अब कहां अड़चन है और किस तरीके से जो है आप जा करके यहां से आला कमान को क्या फीड करेंगे और किस तरीके से जो है अब ये बनना चाहिए कि भाई अब इसकी जरूरत है, अब कर दो इसको। मेरा ख्याल ये है कि अभी आने वाले 2-3 महीनों के अंदर इस पर ये ऐप की शक्ल ले लेगा। जो अब सेशन होगा अगला नेक्स्ट, इसमें कुछ और चीजें भी आनी है, तो उसके साथ ये भी यकीनन होगा। इस बारे में गवर्नमेंट की राय जो है वो मुज़रत है, मनफी नहीं है। गवर्नमेंट खुद चाहती है कि ये होना चाहिए ताकि तमाम शहरियों को यकसा इंसाफ मिल सके। जी मैम, क्या कहेंगे? आपको वक्त की सबसे ज्यादा जरूरत है और कहीं ना कहीं मुस्लिम तबके को खास तौर से, चूंकि अगर पसमानदा है वो दलितों से भी ज्यादा पिछड़ा हुआ है तो मुस्लिम तबका है, उनको जो है बराबरी का हक मिल जाए, चाहे वो नौकरियां हो, एजुकेशन का मामला हो और दूसरे मैदानात में, और उसके लिए इस कमीशन की तश्कील का होना जरूरी है। तो आप लोग सब मिलकर के कैसे काम करेंगे? टाइमिंग का प्रॉब्लम है। जैसे अनीस भाई ने बिल्कुल ठीक कहा कि अगले 2-4 महीने, जफर साहब भी यही कह रहे हैं, हमारे सब साथी भी यही कह रहे हैं, बहुत क्रूशल हैं। मगर इसके लिए हमारे पास टाइम बहुत ही कम रह गया है, क्योंकि अगर आप एक कमीशन बनाएं और ये सारे कमीशन भी बरकरार रखें तो ऐसे लगेगा कि एक और इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया गया है। और अगर इसकी आप रियली इसको इफेक्टिवली बनाना चाहें तो आपको यू नीड एटलीस्ट 6 to 8 मंथ, तो आपको कहीं नहीं गया। और अगला सेशन बहुत छोटा सेशन होगा जिसमें वोट ऑन अकाउंट होगा ताकि बजट पास हो जाए इलेक्शन के मद्देनजर। तो इसलिए लेट्स बी प्रैक्टिकल कि ये मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है एंड गवर्नमेंट्स गो ऑन। इलेक्शन के बाद जो भी सरकार आएगी, नंबर 1 प्रायोरिटी इस सरकार को उसको हैंड ओवर करके, और ये नंबर 1 प्रायोरिटी होनी चाहिए। क्या कहेंगे जफर महमूद साहब, क्या कुछ होना चाहिए? कैसे आप सब लोगों को, चूंकि आप लोग तो मिनिस्टर से और जो है प्राइम मिनिस्टर साहब से भी मिलते रहते हैं, क्या कुछ जो है किस तरीके से उनके ऊपर और ज्यादा प्रेशर, चूंकि उन्होंने कहा कि प्रेशर ही काम करता है, प्रेशर जो है वो होना चाहिए? ऐसा है कि वेयर देयर इज विल देयर इज वे, जहां काम होना है सो होना है। और उसके लिए मुझे नहीं लगता है, ये इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन बनाने के लिए बहुत कार्रवाई हो चुकी विद इन द गवर्नमेंट, सालों साल हो चुकी, और मुझे नहीं लगता कि अब उन्हें कोई प्रॉब्लम है। और अगर प्रॉब्लम होती है तो पार्लियामेंट में आने के बाद होती है, दूसरी पार्टी के जरिए होगी, वो तो फिर बाद में वोटर तय करेगा कि किसने क्या प्रॉब्लम क्रिएट की। कम से कम टेबल तो करें, ये तो दिक्कत कोई होनी नहीं चाहिए। आप जो फरमा रहे थे कि इंफॉर्मेशन की कमी है, तो इंफॉर्मेशन देना गवर्नमेंट का काम जरूर है, लेकिन गवर्नमेंट जितनी 24 घंटे भी अगर लगी रहे, 365 दिन नहीं लगी रहे, तब भी वो आपकी सेटिस्फाई नहीं कर सकती। असली चीज जो है वो ये शहादत की उंगली, इसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन है आज की तारीख में। आप कंप्यूटर के ऊपर दबाएंगे, हर मिनिस्ट्री, हर पार्लियामेंट और सब कौन कौन डिपार्टमेंट्स कहाँ क्या क्या कर रहे हैं, क्या कमी है, इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन में अभी तक क्या सिफारिशें हो चुकी, उसमें क्या कमी रह गई और उसमें क्या चेंजेस होने चाहिए, ये भी सब मैंने इसी का इस्तेमाल करके पढ़ा है इसके अंदर, जो आज मैं आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ। तो लिहाजा मेरी अपील सारे वोटरों से भी ये है कि बराए मेहरबानी इस शहादत की उंगली का इस्तेमाल करें और इंफॉर्मेशन खुद गैदर करें और उसका इस्तेमाल करके कम्युनिटी को ज्यादा ज्यादा आगे बढ़ाने की कोशिश करें। उनको उनको वो बताएं। तीसरी चीज ये कि अगर इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन बन जाता है, ये चीज ही हमारे मुल्क को पूरी दुनिया में आफाक तक पहुंचा देगी, इस वजह से कि ये बहुत बड़ा स्टेप होगा। और इससे ये जाहिर हो जाता है कि हमारा जो समाज है उसमें उसका जो ढांचा है वो हलाल है कि नहीं है। लेजिटिमेसी ऑफ द सोशल स्ट्रक्चर
फुल्ली स्टैब्लिश हो जाती है कि हाँ ये समाज खुद इस बारे में काफी कॉन्शियस है और उसकी वजह से जो है मल्टी कल्चरलिज्म उसको फरोग मिलता है। और साहब मैं तो ये भी कहूंगा कि इक्वल अपॉर्चुनिटी के जो चैंपियंस हों उनको अवार्ड्स मिलने चाहिए। बिल्कुल सही। इस तरह के माहौल अगर मुल्क के अंदर क्रिएट किए जाए तो इंशाल्लाह। बिल्कुल। और आपने कहा कि जो शहादत की उंगली है उससे फेसबुक का इस्तेमाल जरूर करें, लेकिन इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए भी जो है उसको जरूर इस्तेमाल करें। और चूंकि फेसबुक का मिसयूज भी ना करें। हाँ वही मैंने कहा, बाकी 35 बहुत हैं साहब। अगर 1% भी लोग ये काम शुरू कर दें, आधा % भी ये काम शुरू कर दें कि साहब मुझे अपना वजूद सिर्फ ये नहीं सोचना है कि मैं अपने लिए जिंदा हूँ या अपने बीवी बच्चों के लिए जिंदा हूँ, बल्कि कोई दूसरा जरूरतमंद भी उसके लिए भी मैं जिंदा हूँ, कम से कम 1/3। बिल्कुल। खुद भी जाने और अगर 1% भी लोग काम जाने, बिल्कुल खुद भी जो है जानकारी हासिल करें और दूसरों को भी बताएं, चूंकि आइन में जो है वो सबको बराबरी का हक है। अगर किसी के साथ नाइंसाफी होती है, ऐसे में कमीशन की तश्कील करना मुझे लगता है वक्त की सबसे ज्यादा जरूरत है, सबसे बड़ी जरूरत है, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा और सब आप लोगों ने भी कहा है कि आइन में जो है वो सबको बराबरी का हक है। जाहिर है सबको बराबरी का हक है, अगर तो वो हक मिलना भी चाहिए, सिर्फ बातों में ही ना हो। और इसके लिए अगर किसी कमीशन की तश्कील करने की जरूरत है तो उसको जरूर करना चाहिए और उम्मीद करते हैं कि मरकजी हुकूमत इस बार जो है इस कमीशन की तश्कील जरूर कर देगी। बहरहाल आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया जिंदा तिलिस्मात, तमाम मौसमी बीमारियों की एक असरदार दवा। बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। हमदर्द चिक्रीन और अपने लीवर को बनाइए स्ट्रॉन्ग। आदाब, ETV उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम है और आप देख रहे हैं 9 PM खबरनामा। सबसे पहले हेडलाइंस पर एक नजर। केजरीवाल की धमकियों का बिजली कंपनियों पर नहीं कोई असर, कीमतों में 8% का किया इजाफा। दिल्ली में अरुणाचल प्रदेश के रुकन असेंबली के फर्जंद के कत्ल का मामला, दिल्ली हुकूमत ने मजिस्ट्रेट सतह की जांच का दिया हुक्म। मुलाजिमा की आबरूरेजी व मौत मामले में BSP रुकन पार्लिमान धनंजय सिंह के गिर्द दिल्ली पुलिस का कसा शिकंजा, फर्द जुर्मायत। और सन 2012-13 के दौरान इक्तिसादी तरक्की का निशाना हासिल करना दुश्वार, ज़राई, कानकनी और मैन्युफैक्चरिंग शोबे के औसत कारकर्दगी का शाहसाना। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल की धमकियों का कोई असर बिजली कंपनियों पर पड़ता नहीं मालूम हो रहा है। कंपनियों ने कल यानी शनिचर से बिजली की कीमतों में 8% इजाफा करने का फैसला किया है। उधर वस्त और शिमाली दिल्ली के कल से अंधेरे में डूबने का अंदेशा है। NTPC ने दिल्ली हुकूमत की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है। आज जो खबरें छपी हैं बिजली की कटौती के बारे में वो बिल्कुल गलत है। बिजली की कोई कटौती नहीं होने वाली है। पैसा नहीं, बिजली नहीं। नेशनल थर्मल पावर लिमिटेड ने साफ कर दिया है कि वो BSES यमुना पावर लिमिटेड को बिजली सप्लाई नहीं करेगा अगर वो मुकर्ररा वक्त पर उसकी वाजिबुल अदा रकम अदा नहीं करता। NTPC ने अपने फैसले से दिल्ली हुकूमत को वाकिफ करा दिया है, यानी वस्त और मशरकी दिल्ली के अंधेरे में गर्क होने का खतरा है। ख्याल रहे कि अरविंद केजरीवाल ने बिजली कंपनियों पर हुकूमत को ब्लैकमेल करने का इल्जाम लगाया था। कंपनियां बदमाशी करके पैनिक क्रिएट करने की कोशिश कर रही हैं, ब्लैकमेलिंग करने की कोशिश कर रही हैं। देश के अंदर केवल 2 कंपनियां नहीं है, देश के अंदर बहुत है, केवल टाटा और अंबानी नहीं बचे हैं, देश के अंदर बहुत कंपनियां हैं। हम दूसरी कंपनियों को ले आएंगे, तो ये इस तरह की बदमाशी करने से बाज आए। केजरीवाल ने बिजली कंपनियों के लाइसेंस रद्द करने की धमकी भी दी है। ख्याल रहे कि BYPL पर NTPC का 120 करोड़ रुपया बकिया है।
BYPL को बिजली की किल्लत का सामना है और उसने दिल्ली हुकूमत को पहले ही बता दिया है कि उसकी हुदूद में आने वाले इलाकों में शनिचर से 10 घंटे बिजली की कटौती की जाएगी। BYPL ने दिल्ली के पावर सेक्रेटरी को खत लिखकर इस मामले को हल करने को कहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। केजरीवाल वापस अपनी पिच पर। बदनवानी और बदनवान लीडरों के खिलाफ उन्होंने बंदूक तान ली है। उन्होंने आज बदनवान लीडरों की लंबी फहरिस्त जारी की और हामियों से उन्हें हराने की हर मुमकिन कोशिश करने को कहा। उधर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने केजरीवाल की इस कोशिश को इंतखाबी स्टंट और दिल्ली के अवाम से किए गए वादे से पलटने वाला बताया। उधर फारूक अब्दुल्ला ने केजरीवाल के खिलाफ अदालत से रुजू करने की बात कही है, जबकि नितिन गडकरी ने हतक इज्जत का मामला दर्ज करने का इंतबाह दिया है। सुरेश कल